at the end of the COVID period, जब कोविड का जो समय खत्म होने का बाद one day I sat down and think, what are the benefits I received during this almost 3 years of COVID season? और उस समय में मैंने क्या चीज़ों को पाया है, उस चीज़ को सोच करके मैं सोच रहा था। And I wrote some notes, some points, a list of points by which I was benefited during that और period. जो चीज़ें जो भलाई मैंने पाया था उसके ऊपर मैं कुछ नोट्स कुछ चीज़ों को मैंने लिखा उसके बारे में। So one of the thing is I learned during that period uh, to experience God's presence even when I am alone. और उस समय में मैं ये पाया कि परमेश्वर का अनुभव मैंने महसूस किया जब मैं अकेला था। You know, during that period, all our meetings are online Zoom meetings. और उस समय हमारा जो पूरा जो मीटिंग्स जो था वो जूम के ऊपर था। So during that Zoom meeting, I learned there are no brothers and sisters watching me now. और उस समय मैंने ये सीखा वहाँ पे कोई मेरा भाई या बहन मुझे नहीं देख रहा है। So I learned, I could practice, I developing the same reverence as if I am sitting in front of everyone. और उस समय मैं वही चीज़ों का पालन किया और वही उपस्थिति को महसूस किया जैसे सबके सामने मैं बैठा हूँ। So that really helped me, to remain with me, and that learning when I am alone, traveling or alone at home, wherever, the Lord is watching me, and I should live in the presence of God. और जब भी मैं अकेला हूँ, जब भी मैं यात्रा में हूँ, जब भी अकेला हूँ, मैं ये समझता हूँ कि प्रभु मुझे देख रहा है और मैं उसके सामने हूँ। If I am experiencing, if I am learning to reverence God only in the presence of others, it is fake, it is not true. और मैं सिर्फ वो परमेश्वर को वो सम्मान तब देता हूँ जब लोगों के बीच में वो एक फेक है, एक ऐसा दिखावट है। We read a verse in Hebrews chapter 12. और हिब्रू का पुस्तक 12 में एक वचन हम पढ़ सकते हैं। हिब्रू 12 Hebrews verse 28. उसका 28। Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with the reverence and awe. और इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। Brother Beju was sharing about the need to have the spirit of gratitude. और जैसे भाई बांट रहे थे कि एक जरूरत है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। How the Lord helped us in many challenging situations. और किस प्रकार से परमेश्वर हर एक चुनौती के समय में हम लोगों की सहायता किया है। So I was challenged by that. We should need to nurture that spirit of gratitude. और वो धन्यवाद का जो आत्मा हमारे अंदर होना है और उसके ऊपर हमें और काम करना है। And that memory of how God helped us in the past will encourage us for the future. और जो भलाई परमेश्वर ने पहला हमारे अंदर काम किया है वो चीजें हमें उत्साहित करेगा उसको धन्यवाद देने के And लिए। the second learning is to learn to serve God with reverence and awe. और एक बात है कि हम परमेश्वर का सेवा करें एक सम्मान के साथ। Whether we are on Sunday meeting here, whether we are on a Wednesday Zoom meeting, चाहे हम यहाँ पे रविवार के मीटिंग में हो या वेडनेसडे को हम जूम के माध्यम में वहाँ उस मीटिंग में हो, or we are doing even some work in the kitchen, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किचन में काम भी कर रहे हो, we can learn to serve God with reverence. हम उसी सम्मान के साथ परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं एक आदर पूर्वक। Today as we were singing song, this thought was coming to me. और जैसे हम लोग गीतों को गा रहे थे वो ये ख्याल मेरे मन में आया। Even I was tempted to be distracted. और बहुत से बार मुझे भी मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ है। No, looking at the people who was coming late today, such thoughts. और ऐसा कि कौन लोग देरी से आ रहा है उस वैसा चीजें मेरे मन में आता था। So I did not yield. I was tempted. और मैं उसके ऊपर बहुत मैंने परीक्षा प्राप्त किया उसके ऊपर। But then I reminded myself, even as sing, what is song? It is a hymn. It is a prayer. It is a praise. और
गाना गीत जो है वो एक गीत है और वो एक स्तुति का गीत है। If I am singing with mouth, or mind is wandering, what is the point? अगर मैं मुंह से गा रहा हूँ और मेरा मन जो है इधर उधर भटक रहा है, उसका फिर क्या लाभ है। So as I encourage myself, I want to encourage each one of you, even as we sing, we should, it's a challenge for all of us. We should practice to bring our mind back and sing with the meaning. और जब हम गाते भी हैं, हम ये चीज़ों को सीखें और अपने आप को उसमें लाए कि एक अर्थ के साथ हम उस चीज़ को गाते रहे, उस अर्थ को समझ करके हम गाएं। Knowing that every word is precious, a prayer coming out of my heart and an expression of gratitude, we should do that from our heart. और ये जो ऐसा होना चाहिए कि प्रार्थना का हृदय के साथ, और प्रार्थना हमारे हृदय से निकलना है, एक धन्यवाद के भेंट के साथ परमेश्वर को हमें देते रहना है। Amen. आमेन। I want to share from the book of Matthew, chapter 25, verses 1 to 30. मत्ती का 25 1 से लेकर 13 तक का वचन से बात करना This चाहता is हूँ। the chapter we are all very familiar with. और ये काफी पहचाना हुआ एक अध्याय है, सब जानते हैं इस भाग को। I don't want to read it, that you are all familiar with the wise version. 10 versions. It is written 5 were foolish and 5 were wise. और वहाँ पे 5 बुद्धिमान स्त्री और 5 मूर्ख स्त्री के बारे में लिखा गया है। Yeah, last week Brother Abu shared about as Christians that we should come higher. और जैसे जैसे अबू ब्रदर ने जो बांटा था पिछले हफ्ते में कि हम लोग एक विश्वासी के रूप में एक ऊंचे दर्जे से आना है, And we should always be joyful और हमेशा आनंद के साथ आना है that people are watching us, कि लोग हमें देख रहे हैं, and that whenever they see us, that they should also feel that we should also become like them. We should also, when we see them, that we'll be like them. और जब वो लोग देखते हैं हम भी उनके जैसे बने। And as I being a Christian for many years, और जैसे कि मसीहा हो करके बहुत सालों से मसीहा है, and I see others also, और जब मैं दूसरों को भी देखता हूँ, that there's a tendency to get offended very quickly. और ऐसा होता है कि बहुत बार हम उसमें डगमगा जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, And get irritated at the slightest provocation. और थोड़े बातों में हम कभी कभी चिड़चिड़ाहट हो जाते हैं। This I'm talking about my friends circle in other churches. और ये मेरे जो मित्रों की जो संगति है दूसरी कलीसियाओं के, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, In my workplace also, और मेरे काम की जगह में भी, and many people I know. और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत लोगों को। So I was wondering and meditating on why this is that, why we are getting offended. और मैं ये सोच रहा था क्यों हम इतना चिड़चिड़ हो जाते हैं बहुत बार इस तरीके से। And especially myself, about after being so many years in the CFC church. और बहुत से समय इस कलीसिया में होते हुए भी मैं क्यों इस तरीके से एक भावना में आ जाता हूँ। And two days back I was hearing a message by Brother Victor on the topic which I shared. और भाई विक्टर का एक मैसेज था, उसको मैं सुन रहा था। And this message was on this only, the 10 versions. और वो जो वचन था वो जो 10 स्त्रियों के बारे में, And especially he was pointing out why the extra oil. और खास करके वो जो है जो ज्यादा जो तेल है उसके बारे में वो बता रहा था। And this signifies the inner life of every Christian. और ये जो है हर एक विश्वासी का जो अंदरूनी जीवन है उसको बताता है। And we all as Christians, we carry some oil with us. और हम जो मसीहा के लोग हैं, हम हमेशा थोड़ा सा तेल लेकर चलते हैं। And this light shines in our life. और वो जो ज्योति है वो चमकता है हमारे जीवन में। But the brightness of this light depends on what is in which extra oil we carry. और उसका जो चमक जो है, जो ज्यादा से जब चमकता है वो उस तेल के ऊपर निर्भर करता है जितना हमारे पास तेल है। See, the outward life which we live as Christians, जो बाहरी जो जीवन जो एक मसीहत के जीवन हम जीते हैं, it is visible to all. और ये वो चीज है सबको दिखाई देता है। That's how coming to church, और जैसे कि हम कलीसिया को आते हैं singing songs and participating in many ministries. और बाकी सब चीजों में हम भाग लेते हैं, गीतों को भी गाते हैं। This is all outwardly. और ये सब चीजें जो बाहर का जो जीवन है, But what about what is inside us? और क्या हमारे अंदर क्या है, What is the inner state of our life? और अंदर का जो स्थिति कैसा है हमारा।
And he very beautifully explained that how this parable is applied to each and every Christian. और ये जो दृष्टांत जो है अच्छी तरीके से बताया गया, कैसा हर एक विश्वासी इस चीज को लागू कर सकते हैं। Yeah, he shared about his personal experience, और उसने अपना व्यक्तिगत जो अनुभव को उसने बताया, how he grew spiritually. और किस प्रकार से हम आत्मिक तरीके से बढ़ते हैं। And he was humiliated in his life many times. और बहुत से समय उसको निराशा होना पड़ा उसके जीवन में, और उसको निंदा सहना पड़ा, But he got spiritual growth by going through it. लेकिन उसके होते हुए भी वो अपने आत्मिक जीवन में बहुत उसने सीखा। And I want to examine my life today. और मैं अपने जीवन को भी जांचना चाहता हूँ आज। See, if you would look at the Bible, there are people who had oil with them that was outwardly. People in the Bible who had oil with them. that हाँ, was जिनके external. पास तेल था, वो जो लोगों के स्त्री के पास तेल था, वो बाहर तरीके से था। Yeah, I want to speak about two people, Gehazi and Judas. दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, गेहाजी के बारे में और जुडास के बारे में। You know them. What is the story? और उनका जो कहानी को हम सब जानते हैं। Yeah, one was with the prophet, one was with Jesus. और एक जो है भविष्यवक्ता के साथ था, और एक था प्रभु यीशु मसीह के साथ था। Outwardly, they had a good life, और बाहर के जीवन उनका अच्छा था, but inner life was not good. और उनका अंदरूनी जो जीवन था वो सही नहीं था, And they met with a very bad ending. और उनका जो अंत जो था एकदम खराब था। And looking at them, I examine my life. और उनको देखते हुए मैं मेरा जीवन को भी जांचता हूँ, That am I a namesake Christian? क्या मैं नामधारी मसीहा हूँ क्या? So am I getting offended quickly? क्या मैं तुरंत चिड़चिड़ होता हूँ क्या? Am I complaining? क्या मैं उसके ऊपर कंप्लेन करता हूँ क्या? Am I critical about others? और दूसरे के बारे में मैं ज्यादा चिंता करता हूँ क्या? Am I quarrelsome? और क्या मैं उसके बारे में कॉरल करता हूँ, मतलब उसके बारे में और दूसरे के बारे में इधर उधर बताता हूँ क्या? Is there a spirit of competition in me? और मेरे अंदर जो है वो कंपटीशन का आत्मा है क्या? That do I try to form my own group? क्या मैं अपना ही ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ क्या? Am I rebellious? क्या मैं बहुत रिबेलियस होता, क्रोध करता हूँ क्या? And when I get corrected, do I get offended? और जब मुझे ठीक किया जाता है, क्या मैं उसके ऊपर उसके विरुद्ध क्या मैं गुस्सा होता हूँ? And I have thoughts about leaving the church. और सोचता हूँ कि कलीसिया छोड़ के जाऊं? Am I gossiping and spreading false rumors? और दूसरे के साथ बातचीत करता हूँ और एक गलत चीजों को फैलाता हूँ क्या? This are all characteristics that was explained by Brother Zach in many of his meetings. और ये गुण है, बहुत भाई जैक ने इसके बारे में बताया है, इस गुणों के बारे में बहुत से मीटिंग में। And this all happens when we have no extra oil with us. और ये सब होता है जब हमारे पास काफी तेल जब हमारे पास नहीं रहता है, ये सब चीजें हमारे अंदर घटती रहती है, Getting angry, complaining. और हम गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और कंप्लेंट करते हैं। These are all signs of the lacking of extra oil in our life. और ये सब चिन्ह है कि हमारे अंदर वो तेल है, वो उसका कमी है हमारे अंदर। And how can I get this extra oil? और कैसा मैं वो उस तेल को मैं प्राप्त कर सकता हूँ? That God will allow some adverse situations, circumstances in our life. और कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को, कुछ बातों को अनुमति देता है हमारे जीवन में होने के लिए, And through some people, कुछ लोगों के द्वारा, through our wife, our children, our neighbors, और हो सकता है पड़ोसी के साथ, पत्नी और बच्चे लोगों के द्वारा वो हो सकता है, at our workplace, हमारे काम के जगह में भी हो सकता the है, difficult boss or colleagues. और हो सकता है कि जो ऊपर जो बॉस है वो एकदम बॉस के द्वारा या हमारे दोस्तों मित्रों के द्वारा भी हो सकता है, Brothers and sisters in the church. और भाई बहन जो कलीसिया में उनके द्वारा भी हो सकता है। And when you are tested in this area, how is our reaction? और जैसे हम इसके ऊपर इस जगह में हमारा जब परीक्षा होता है, कैसा है हमारा आत्मिक जीवन? But it is only through suffering unjustly that we can learn humility. और सिर्फ हमें दुख उठाने के द्वारा ही हम नम्र हो सकते हैं, And only the Holy Spirit will give us this. और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें ये दे सकता है। I want to praise and thank God for today's message. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। As Brother Biju was talking about the reverence for the Lord, और जैसे ब्रदर बिजू बात कर रहे थे परमेश्वर के लिए एक भय के बारे में, that was something that I was hearing Brother Zach speak yesterday night. और ये कुछ ऐसा है जो मैंने कल रात को ब्रदर जैक के द्वारा सुना। He was saying when we are singing songs, और वो बोल रहे थे कि जब हम गाने को गाते हैं, when we are singing songs and we go on the tune and we think about so many other things.
जब हम गाने को सुनते हैं, उसकी ट्यून को सुनते हैं, तो हम बहुत सारी दूसरी बातों के बारे में सोचते हैं। He was talking about singing like the song, There is None Like You. और वो उस गीत के बारे में बता रहे थे जहाँ ऐसा लिखा है कि आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। But whom are we thinking of at that time? पर उस समय हम किसके बारे में सोच रहे हैं? There's none like you. We are singing because the song is so sweet, the tune is so melody. There's so much of melody in it. और हम ये गीत गा रहे हैं कि आपके जैसा क्यों कोई भी नहीं है, क्योंकि वो गीत इतना मधुर है, उसकी जो धुन है वो इतनी अच्छी है। But are we thinking of the one, the Lord? There is none like you, Lord Jesus. पर क्या हम परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है? And that really spoke to my heart. और इसने सच में मेरे हृदय से बात की। And I told the Lord, Lord, I want to practice this. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं इसका अनुसरण करना चाहती हूँ। Today morning when we were worshiping here, और आज जब हम यहाँ पर आराधना कर रहे थे, I put it into practice. और मैंने उसे अभ्यास में लाने की कोशिश की। And I said, Lord, I would just want to think of you when I'm singing these songs. और मैंने कहा प्रभु जब मैं गाना गा रही हूँ मैं सिर्फ आपके बारे में सोचना And I चाहती हूँ। tell you, I really was lifted up into the realms of heaven. और सच में आज मैं उस स्वर्ग की ओर उठाई गई ऐसा मुझे लगा। And I began to see how it is worship God there. I was feeling like I am just in the presence of the Lord and worshiping Him. और मैं बताना चाहती हूँ कि ये कितना अद्भुत है उसकी उपस्थिति में आराधना करना। I really felt that, the presence of the Lord, and whatever I was doing for the glory of God. और मैंने सच में प्रभु की उस उपस्थिति को महसूस किया और मैं जो कुछ कर रही थी वो प्रभु के लिए कर रही थी। And I want to encourage each and every one of you that, try to do this. Many times when I'm cooking also I'm singing, but I'm just singing. और मैं आप सबको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें। और बहुत बार जब मैं खाना बना रही होती हूँ तब भी मैं गा रही होती हूँ। Yeah, but sometimes I'm thinking of the taste of the food and how, the children will like it or not like it. पर तब मैं सोच रही होती हूँ कि खाना अच्छा बनेगा कि नहीं, या बच्चे इसको पसंद करेंगे कि नहीं। And I'm singing. और मैं गा रही होती हूँ। But if there I can think of the Lord even while cooking and, know the Lord's presence, that I'm singing to Him. और उस समय भी मैं परमेश्वर के बारे में सोच सकती हूँ और इस बात को जान सकती हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए गा रही हूँ। Or it's just a tune and then I'm just humming it and I'm just going on. It should not be meaningless. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सिर्फ एक धुन है इसलिए मैं गा रही हूँ और बिना मतलब के मैं गा रही हूँ सिर्फ। So I want to put this more and more into practice because I experienced this today and I want to do it more often in my life. Pray that God will help me and give me the grace to concentrate on the Lord, and whatever I'm doing, do it for the glory of God. और आज मैंने इसको महसूस किया और मैं चाहती हूँ कि मैं और इसको अधिक अभ्यास में लाऊं ताकि मैं जो कुछ भी करूँ वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही करूँ। Like we sang today that song, No Other Name. So what am I thinking of when I'm thinking of singing those words? और जैसे कि आज हमने गाया कि कोई नाम नहीं पर परमेश्वर का नाम, तो पर उस समय मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? I said, Lord, I want to think of you. और मैंने कहा प्रभु मैं आपके बारे में सोचना चाहती And हूँ I want to do it more often. और मैं और अधिक इसको करना चाहती I हूँ want to make this like a part of myself. और मैं इसको अपने स्वयं का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। And I want to encourage each one of us to really put this, that we think of the Lord. We just don't do anything just like that. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम जो ये करें वो परमेश्वर के लिए हम इसे करें, ऐसे ही ना करें। That word reverence and awe, this is a very deep word. We can take it to heart. और जो परमेश्वर का एक के लिए जो भय है वो बहुत ही गंभीर है और चाहिए कि हम इसे अपने हृदय में लें। I want to have this change in my own life. और ये मैं अपने जीवन में ये स्वयं ये बदलाव Pray चाहती that हूँ the Lord will give me grace. और प्रभु मुझे इसके लिए अनुग्रह देगा।